Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to be discussing the global nuclear regime and with a specific focus on South Asia. Since throughout the lectures, what I've tried to do is कि पाकिस्तान का एंड में एक perspective हम देते हैं, लेकिन क्योंकि एटलीस्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से साउथ एशिया का जो रीजन इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट वॉलेटाइल इन नेचर इन टर्म्स ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस, जो कि स्पेसिफिकली स्पीकिंग कही जाती है कि जी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में पीक पर है इस वक्त दुनिया में किसी और रीजन के कंपैरेटिवली। उसी तरह while रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया आर आल्सो नॉट वेरी कंड्यूसिव, कोई अच्छे हालात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आर्म्स रेस को कोई इतना सिवियर नहीं कंसिडर किया जाता एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। Okay, so let us start with this very important quote by Hedley Bull. He said that it is commonly assumed that the only important questions that arise in connection with disarmament, which means के हथियार डाल देना या disarmament of nuclear weapons यानी उनको खत्म कर देना, और arms control concern how it may be brought about, but the question must first be asked, what is it for? यानी कि ये तो सब काफी जो आपके जो peace groups हैं, many of the liberals and general thinking है across the globe after the 90s and specifically during the 90s, वो एक liberal approach थी. It was a peaceful era, time था, growth and economy का, तो उस वक्त ये concept रखा गया था और तभी ये जो treaties है वो comprehensive test ban treaty थी and all of those things, इनकी signatories की तरफ बढ़ना and ये सारी चीजें जो हैं उस वक्त अमल में आती, because it was considered like the highest peak of liberal इकोनॉमिक्स कि जी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, बॉर्डर्स डिसॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का शेयर है. सो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ यूफोरिक मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उस वक्त ये समझा जाता था कि जी न्यूक्लियर वेपन्स की अब जरूरत एज सच नहीं रही. So early 90s के अंदर there was little that could have been done about the regional conflict that was happening in Pakistan and India. हमें ये पता है कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी और फिर बाद में पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगी, लेकिन जिस दिन पहला न्यूक्लियर धमाका किया था इंडिया ने, उसी दिन it was pretty much obvious कि that Pakistan had little to no choice but to go nuclear as well. इसको ताकि रीजन की स्टेबिलिटी रहे. अच्छा, अब इससे क्या मतलब है ये हम आगे भी देखेंगे. Unless there can be some clear conception of what is that disarmament or arms control is intended to promote, and to what extent and what ways it is able to do so, no disciplined discussion of the subject can begin. यानी कि obviously having more dangerous weapons around the globe, जहाँ पे ज़्यादा चांस बढ़ता जा रहा है एक न्यूक्लियर वॉर का या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, क्योंकि अगर एक जो न्यूक्लियर अपना क्या कहते हैं बॉम्ब गिराया जाता है तो उसकी जो repercussions हैं that last for many years, not just that moment. I would recommend कि आप लोग हिरोशिमा एंड नागासाकी जो के 1945 में बॉम्ब गिराया था यूएस ने जापान के ऊपर, इन दो शहरों को तबाह कर दिया था, उसकी इम्पैक्ट्स को देखें. जरा देखिएगा कि किस तरह से जेनेटिक म्यूटेशंस और इलनेसेस का एक थरो स्प्रेड रहा है throughout the many generations in those two cities, specifically even the survivors that did, and it was a horrific scene. इसके हवाले से एक आर्टिकल है, वो मैंने आप लोगों की रीडिंग लिस्ट में डाल दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो आप पढ़ेंगे तो you will get a better idea कि exactly क्या connotations और क्या मतलब है कि अगर कोई इतनी खौफनाक किस्म की अगर वेपन का इस्तेमाल एक्चुअली होता है तो what does it actually result in. और वो था भी बिल्कुल बेसिक बॉम्ब, the one that was dropped on Hiroshima and Nagasaki. Weapons have been enhanced on a whole another level now. Hydrogen bomb जो है अब आपका वो कहा जाता है कि could be equivalent to 1,000 Hiroshima and Nagasaki's. Okay, so moving forward, right now 2020 में जो estimated global nuclear warhead inventories थी वो क्या थी? Israel, although has officially never said that they have a program that supports nuclear weapon programs नहीं है, लेकिन obviously the whole world knows that Israel has a nuclear program. United States के पास इस वक्त रशिया के पास जो है इस वक्त सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं 6,375, एंड यूके के पास मौजूद है, फ्रांस के पास मौजूद है. अच्छा, कनाडा इज अ यूनिक केस ऑफ sort of an exception to this because they do have nuclear capable technology. In fact, जो reactors इंडिया ने इस्तेमाल किए और जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया, वो रिएक्टर्स उन्होंने कनाडा से खरीदे थे, जो कि जब इंडिया एक्चुअली वेंट मिलिटरीली न्यूक्लियर
तो सबसे ज्यादा एतराज और शोर जो है कनाडा ने किया था। और वो जो मशीन्स थी एंड जो रिएक्टर्स थे, इट वाज उस जमाने में ये कंजेक्चर था, ऑल्दो कनाडा नेवर रियली ओपनली एडमिटेड टू दिस, और उसके हवाले से थोड़ा सा वो मौजूद है, लेकिन अब इट इज अ नोन सीक्रेट कि कनाडा ने प्रोवाइड किए थे सारी चीजें, एंड बिकॉज दे वांटेड टू प्रोवाइड इंडिया विद एन ऑप्शंस फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक्सप्लॉइट किया गया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर। हाउएवर वो उनकी मिलिट्री कैपेसिटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिस तरह के पाकिस्तान में। जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन थी 1945 में हुई, उसके इमीडिएटली आफ्टरमैथ में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जापान 45 इट आल्सो ऑफिशियली, मतलब वॉर ऑफिशियली खत्म हो चुका हुआ था, द एलाइज हैड वन। हाउएवर दिस would remain as one of the lasting examples of add more injury to the already existing injury, because क्योंकि Japan had dared attack America in the form of Pearl Harbor, तो ये एक तरह का revenge था। Even though the Allies had already won, there was no need for this particular bombing. But this would serve as a reminder to every other state forever that the US has the capacity to destroy its enemies completely, those at least the ones that dare to attack them. फिर obviously in pursuit of कि उनकी ideological differences से, this is also a beginning period of the Cold War कि जी Soviet communism states and capitalist states के दरमियान में एक जो global warfare start हुआ था right after the World War II, तो वो जब हम देखते हैं तो फिर many of the states became nuclear, जिसमें North Korea eventually later on, much later on, they also became nuclear. और सबसे पहला तो जी the UK became in 1952, France in 1960 and China in 1964, and they were obviously closely followed by 70s के अंदर by an explosion was conducted by India and then followed by Pakistan. And North Korea has also pursued its various ventures, और वो भी NPT का हिस्सा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जब देखा कि जी कंट्रीज जो हैं वो more and more countries are becoming nuclear and it is becoming a problem, because जितने ज्यादा nations होते जाएंगे nuclear, उतना ज्यादा control mechanism dangerous हो जाएगा। एक country के assets गलत हाथ में fall कर जाएं तो it would be disastrous for the entire human race. So despite the fact that many people say कि जी एनपीटी कोई सक्सेसफुल नहीं रही, कोई खास कंट्रोल नहीं हुआ, वेपन्स और आर्म्स रेस जो है यूएस और रशिया के दरमियान में भी चलती रही थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, एंड यूके और फ्रांस भी अपनी टेक्नोलॉजी और वेपनरी को एनहांस करते रहे हैं, और टेस्ट बैन के बावजूद जो है 90s एंड 2000s के अंदर जो है यूएस अपनी मुख्तलिफ टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स के कंडक्ट करता ही रहा है। So this is true for like all these states. Achha, India, Israel, and Pakistan never signed NPT, and all these 3 states possess nuclear weapons, and उन्होंने कभी भी NPT को sign नहीं किया था. So China signatory है NPT का, which is the non-proliferation treaty. That means कि आपके weapons और spread ना करें. So despite the fact कि North Korea ने भी pull out कर लिया था treaty में से in 2003, और sanctions के डर से इराक जो है और ईरान जो है अभी तक फुली न्यूक्लियर नहीं हुए। लीबिया, सीरिया, ईरान, these are the countries that have secretly pursued becoming nuclear to protect themselves. इसके पीछे 3-4 थ्योरीज हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। होता क्या है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल करना, टैकल करना इन ट्रीटीज के अंडर मुश्किल रहा है, लेकिन इसमें एक तरह से सक्सेस भी है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ कि 86 में पीक कर गए थे न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स, उसके बाद इनके नंबर्स में ग्लोबली ड्रॉप आया है क्योंकि बाकी कंट्रीज को कंट्रोल कर लिया गया वक्त से पहले। सो अब कोई कंट्री अगर रिस्क लेता है न्यूक्लियर होने का तो उसको बहुत ज्यादा थ्रेट फेस करना पड़ता है उन कंट्रीज से जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या जो फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, जिसमें लीडिंग एग्जांपल आपके पास यूएस और चाइना की है। Okay, so what is the purpose? Why opt for a weapon that you can never use? अब इसमें सबसे important चीज क्या है? As you can see in this particular comic, के deterrence और क्या कहते हैं mutually assured destruction. I forgot to mention here कि MAD is an acronym which means mutually assured destruction. That means कि जो countries जिनके पास nuclear weapons हैं उनको अगर ये confirm है
कि जी हम अपना वेपन फायर करके दूसरे को इररिपेरेबल डैमेज दे सकते हैं, जहां से रिकवरी इम्पॉसिबल होगी, तो वो हम पे हमला ही नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई हम पे हमला करता है, विच इज जो कि इंडिया पाकिस्तान के केस में हैज बिन अ थिंग, कि जी वो आप पे, अगर हम पे इंडिया हमला करता है, इंडिया हम पे हमला करेगा, हम उन पे कर देंगे, एंड मतलब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, दोनों तबाह हो जाएंगे। और न्यूक्लियर वेपन्स का स्केल और लेवल ऑफ डैमेज ही इस तरह का है कि वो इतना इररिपेरेबल ह्यूमन लॉस है दैट इट वुड मेक नो डिफरेंस एट हु हैड अ बिगर आर्मी या किसका एरिया ज्यादा था। Okay, so now coming to the reason for having nuclear weapons in the first place, I think this comic is quite self-explanatory कि क्यों ईरान परसू कर रहा है न्यूक्लियर डेटरेंट। देखिए ना, अब आपको ये पता है कि वो तमाम ममालिक अगर जिनके ऊपर इन्वेजन हुई है, अफगानिस्तान बीइंग एन एग्जांपल, ये एक और बात है कि उस डिबेट में हम जाएं कि एक कितनी डिफिकल्ट किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो कि जिसको रिकग्नाइज नहीं करती दुनिया, जैसे तालिबान की थी फ्रॉम 94 टू 2001, तो कैसे उनके हाथ में अगर होते न्यूक्लियर वेपन्स तो क्या अमेरिका उन पे कभी हमला करता? सवाल ही पैदा नहीं होता। they wouldn't even think or dare about attacking any particular country that has a nuclear weapon। उनको इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती थी, उनको ट्रेड के जरिए खींचा जा सकता था, एंड मुख्तलिफ वजूहात। तो जब किसी किस्म का नुकसान गारंटीड होगा उस पार्टी को जो अटैक कर रही है, इन दिस केस अमेरिका, तो वो कभी भी उन कंट्रीज पे हमला नहीं करेगा। आई थिंक दिस कार्टून डिस्क्राइब्स द कोर ऑफ द इशू कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे पाकिस्तान है, डू यू थिंक दैट वी वुड हैव बीन सेफ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर हमारे पास वेपन्स ना होते? बहुत सालों पहले शायद अमेरिका ने इस प्रीटेक्स्ट पे कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं एंड दे आर सपोर्टिंग द तालिबान, तो हम इन पे हमला कर देते हैं। हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन आपके न्यूक्लियर आर्सेनल ने आपको बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ। पाकिस्तान बीइंग द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, दो ही चीजें आपको इस रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पे एवरी स्टेट इज ओनली इंटरेस्टेड इन इट्स ओन बेनिफिट, एक प्रोटेक्ट कर सकती है, या तो वो न्यूक्लियर डेटरेंस है या वो पैसा है। इन द केस ऑफ सऊदी अरब एंड मेनी अदर स्टेट्स, उनके पास बेशुमार पैसा और रिसोर्सेज है, ये हमें पता है। अच्छा, तो बेसिकली डेटरेंस ये कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स कैन इंड्यूस स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज द चांसेस ऑफ क्राइसिस एस्केलेशन। यानी कि पुराने जमाने में जो और इतने सारे वॉर्स हुए आपके, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, तो वहां पे इतना आपस में लिंक था इस बात का कि बिकॉज वहां पे डेटरेंट नहीं था। वो कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते उस जमाने में, या अगर होते सॉरी, तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी ना होते। there is some benefit that can be drawn from this argument, because वाकई ये हो सकता है, क्योंकि अगर डेटरेंस मौजूद होती कि जी इतना कोई सिवियर या खतरनाक स्टेप उठा सकती है कोई स्टेट, तो शायद वाकई फ्रॉम द फियर ऑफ रिटेलिएशन आपका वॉर एक्चुअली ब्रेकआउट होता ही ना। तो अगर कोई मामूली लड़ाई स्टार्ट होती है, तो फियर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर यूजेज के बेस के ऊपर वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे रुक जाता है। फिर जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का जो सारा पायलट्स वाली जो लड़ाई हुई, या अभी रिसेंटली पाकिस्तान के सॉरी चाइना और इंडिया के दरमियान में कीलों लगी लकड़ियों के साथ लड़ रहे थे उनके फौजी, लिटरली, बिकॉज नोबडी वांटेड टू टेक अप आर्म्स, बिकॉज एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि लड़ाई वर्स ना होती जाए टाइम के साथ।